Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmi Agri School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we'll start lesson number 8, fraction. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned our last classes. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. First we will see what you had learned our last classes. So what you had learned our last classes, first you had learned the recall exercise, then after we had learned the equivalent fraction, then after we had learned the exercise 8.1, then after we had learned the finding equivalence fraction. In this topic we had learned about the by using the multiplication and division method we are solving the find the equivalence fraction. Then after we had learned the checking for equivalence. In this topic we had by using the crossing method we are checking the equivalence fraction. Then after we had learned the fraction in the lowest term. In this topic we had learned the fraction lowest term is only common the one factor is numerator and denominator. In this topic we had learned when the lowest term we had take out. So when denominator and numerator in that two number only one is the common factor. So this is called lowest term. Then after we had learned the simplification of fraction. So in this topic we had by using the division method we had take out the simplification of fraction. Then after we had learned the types of fraction. So two types of fraction, like fraction and unlike fraction. Like fraction means suppose we are giving the one set. Now here I have one set. That set all denominator is the same. When the denominator is same in set, so this is called the like fraction, and unlike fraction denominator is the different of the set, so this is called unlike fraction. Then proper and improper. What is the proper and what is the improper? Improper means suppose denominator is small than numerator is called the improper fraction, and denominator is greater than numerator, so this is called denominator is greater than the numerator, so this is called proper fraction. Then mixed fraction, when the two fraction is combined together is called the mixed fraction. Now 1 divided by 4, 1 is the whole fraction and that second fraction is given the half, means this is the mixed fraction. Then unit fraction. What is the unit fraction? Suppose we are given the one set and that all set numerator is the 1 is called the unit fraction. Then after we had learned the convert the improper fraction and mixed fraction. So how to convert? Suppose we are giving the improper fraction and say convert into the mixed fraction. That time we will do division, means denominator is divided by numerator. डिनोमीटर हम न्यूमरेटर के साथ डिवाइड करेंगे. जो भी हमारा क्या आएगा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हम होल में लिखेंगे और रिमाइंडर हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको लिख देते हैं. एंड अगर मिक्स है और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं. मतलब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड करेंगे. 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 + 1 7 और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको लिख देते हैं. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7 divided by 3. Then after we had learned the comparing of the fraction. Suppose denominator are same, so that time whichever the is greater number is the greater number. Means 4 divided by 5 and 2 divided by 5. From that both number denominator is the 7. So in this case whichever the is greater number is greater. Means 4 divided by 5 is greater than 2 divided by 5. Then after we had learned the comparing the unlike fraction. So when unlike fraction is, so that time we are by using the LCM method we are take out the question. So we had done exercise 8.7 question number C तक हमारा हो गया. Now question number D, arrange the descending order using the symbol.
क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है. डिसेंडिंग मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉल. बट नाउ सपोज वी आर लुकिंग दिस नंबर. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सभी का अलग है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करके हम एग्जाम को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, 5 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड 3 डिवाइडेड बाय 6. ये फर्स्ट नंबर है. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, नोटबुक में सॉल्व करेंगे. 5 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइडेड बाय 6. तीनों का न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है. उस समय हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम ऑफ 12, 6 एंड 8. तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12 के टेबल में, 6 के टेबल में और 8 के टेबल में कौन सा कॉमन नंबर आता है. तो कौन सा नंबर कॉमन आएगा, 24. 24 12 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है. तो हम क्या, एलसीएम हमारा कितना आ गया है, 24 आ गया. अभी क्या करेंगे, 12 को हमें 24 लाना है. तो हम क्या करेंगे, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा. 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा. और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा. तो 5/12 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट. 5 डिवाइडेड बाय 12 है, उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब हमारा डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा. 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाय 24 कितना आ गया, 24 आ गया. अभी 1 डिवाइडेड बाय 6 है, उसको 24 आना है. तो 6 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आएगा. 6 4 सा 24. तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों भी इसमें 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 24. 6 4 सा 24. अभी 3 डिवाइडेड बाय 8 है. 3 को हम क्या 8 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा. 3 8 3 सा 24. 3 3 सा 9 एंड 3 8 3 सा 24. देखो अभी सभी का डिनोमिनेटर सेम आ गया है. तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लिखना है. सबसे बड़ा नंबर क्या है, क्या हमारा 10 डिवाइडेड बाय 24 है. उससे छोटा 9 डिवाइडेड बाय 24 है. और उससे छोटा क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 24 है. और हमें क्या करना है, ये वाला सिंबल यूज़ करना है, ग्रेटर वाला. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 24 ग्रेटर दैन 9 डिवाइडेड बाय 24 ग्रेटर दैन 4 डिवाइडेड बाय 24. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे बड़ा क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 12 ग्रेटर दैन, फिर क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 8 और उससे ग्रेटर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 6. 5 डिवाइडेड बाय 12 ग्रेटर दैन 3 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 8 ग्रेटर दैन 1 डिवाइडेड बाय 6. So this is example number 1. Now example number 2. Example number 2 में क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 7 देन 11 डिवाइडेड बाय 21 देन 9 डिवाइडेड बाय 14. देखो यहाँ पे भी सभी का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग है. तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 7 21 एंड 14. अभी तीनों के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, कौन सा नंबर आता है, तो हमें 21 14 का टेबल लिखना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले हम 7 का टेबल लिखेंगे. 7 14 21 28 30 35 42 49. ये मैंने 7 का टेबल आधा लिख दिया. ठीक है, फिर 21 का टेबल लिखेंगे. 21 42 देन 63, यहाँ तक ही लिखूंगी. ठीक है, क्योंकि दोनों में 42 42 दिख रहा है. अभी 14 का टेबल लिखेंगे. 42 देन 28 देन 42. देखो अभी तीनों के टेबल में क्या कॉमन है, 42.
तीनों के टेबल में 42 कॉमन आ गया है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया है 42 है। तो हमें 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। और 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया है 42। तो अभी सबसे पहले क्या है 5 डिवाइडेड बाय 7 है, उसको कितने के कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 7 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया 5 इंटू 6 30, 30 डिवाइडेड बाय 42 आ गया। ये हमारा क्या हो गया 30 डिवाइडेड बाय 42। देन सेकंड नंबर है 11 डिवाइडेड बाय 21। 11 डिवाइडेड बाय 21 है, ठीक है। 21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा 2 के साथ। तो हम क्या करेंगे 11 को भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 21 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 2 सा 22 और 21 2 सा 42 आ गया 42। देन नेक्स्ट नंबर इज द 9 डिवाइडेड बाय 42। सॉरी, यहाँ क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 14 आएगा, ठीक है। 9 को और 14 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 42 आएगा। 3 को तो 9 और 3 को हम क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 सा 27 एंड 14 3 सा 42, 14 3 सा 42। अभी देखो सभी का डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारा 42 आ गया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 30 डिवाइडेड बाय 42। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 42 ग्रेटर देन कौन सा नंबर आएगा 27 डिवाइडेड बाय 42 देन ग्रेटर देन 22 डिवाइडेड बाय 42। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सबसे बड़ा क्या है हमारा 5 डिवाइडेड बाय 7। 5 डिवाइडेड बाय 7 ग्रेटर देन कौन सा नंबर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 14। 9 डिवाइडेड बाय 14, 9 डिवाइडेड बाय 14 के बाद क्या आएगा 11 डिवाइडेड बाय 21। सो 5 डिवाइडेड बाय 7 ग्रेटर देन 9 डिवाइडेड बाय 14, 9 डिवाइडेड बाय 14 ग्रेटर देन 11 डिवाइडेड बाय 21। सो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 7 डिवाइडेड बाय 16 देन 9 डिवाइडेड बाय 32 देन 5 डिवाइडेड बाय 8। अभी तीनों का डिनोमिनेटर कैसा है तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है और न्यूमरेटर भी अलग है। तो हमें यहाँ पे भी एलसीएम मेथड निकालनी पड़ेंगी। एलसीएम ऑफ 16, 32 एंड 8। तीनों का एलसीएम क्या आएगा देखो 16 के टेबल में 32 आता है, 32 के टेबल में 32 आता है और 8 के टेबल में भी 32 आता है। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 32। 16 2 सा 32, 13 1 सा 32 एंड 8 4 सा 32। तो हमें 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 31 को 1 के साथ और 8 को हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 32। तो इसका एलसीएम क्या है 32। 7 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 16 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 सा 14, 14 डिवाइडेड बाय 32। इसका आ गया अभी डिनोमिनेटर 32। अभी क्या सेकंड नंबर क्या है 9 डिवाइडेड बाय 32। 9 और 32 दोनों को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 32। नाउ नेक्स्ट नंबर 5 डिवाइडेड बाय 8। 8 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 8 4 सा
32। 8 4 32, तो कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 32। अभी सभी का डिनोमिनेटर 32 आ गया है। सबसे बड़ा क्या है 20 डिवाइडेड बाय 32, उससे छोटा क्या है 14 डिवाइडेड बाय 32, और उससे भी छोटा क्या है 9 डिवाइडेड बाय 32। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा क्या है 5 डिवाइडेड बाय 8, देन क्या है उससे बड़ा उससे छोटा 7 डिवाइडेड बाय 16, और उससे छोटा क्या है 9 डिवाइडेड बाय 32। सो सबसे छोटा क्या है सबसे बड़ा क्या है 5 डिवाइडेड बाय 8, देन 7 डिवाइडेड बाय 16, देन आएगा 9 डिवाइडेड बाय 32। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 7 divided by 10, then 17 divided by 20, then 23 divided by 30। अभी देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों भी अलग है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 30। अभी तीनों के नंबर में कौन सा नंबर कॉमन आएगा 60। 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है, 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है, और 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 60। हमारे तीनों का डिनोमिनेटर क्या लाना है हमें 60 लाना है। तो अभी 7 डिवाइडेड बाय 10 है, उसको हम क्या करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 42, 42 डिवाइडेड बाय 60, देन 17 डिवाइडेड बाय 20। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 60 आएगा। 23 चा 60 एंड 17 3 चा 50, 51। तो इसका आंसर कितना आएगा 51 डिवाइडेड बाय 60, देन 23 डिवाइडेड बाय 30। 23 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 23 चा 2 कितना होगा 46, 46 डिवाइडेड बाय 60। अभी देखो सभी का डिनोमिनेटर 60 आ गया है। सबसे बड़ा क्या है 51 डिवाइडेड बाय 60। उसके बाद क्या आएगा 46 डिवाइडेड बाय 60, और उसके बाद क्या आएगा 51 हो गया 46 है, देन 42 डिवाइडेड बाय 60। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा क्या है 17 डिवाइडेड बाय 20, फिर उसके बाद क्या आएगा 17 डिवाइडेड बाय 20, देन 23 डिवाइडेड बाय 30, और लास्ट में क्या आएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाय 10। 17 डिवाइडेड बाय 20 इज ग्रेटर दैन 23 डिवाइडेड बाय 30 एंड 23 ग्रेटर दैन 7 डिवाइडेड बाय 10। So this is question number 4. Now look at question number 5. Question number 5 में क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5, then 7 डिवाइडेड बाय 15 एंड देन 19 डिवाइडेड बाय 30। भी तीनों का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों भी अलग है, तो यहाँ पे हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है एलसीएम ऑफ 5, 50 एंड 30 तीनों का एलसीएम क्या आएगा, कौन सा नंबर तीनों के इसमें कॉमन आएगा। 30 के टेबल में 30 आता है,
15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, और 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। तीनों के टेबल में क्या कॉमन है? 30 कॉमन है। तो सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा? 6 2 जा 12, क्या आ गया? 12 डिवाइडेड बाय 30, देन 7 डिवाइडेड बाय 15। 15 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, 15 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 30 आएगा। तो 14 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। अभी क्या है? 19 डिवाइडेड बाय 30, उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाइनटीन मल्टीप्लाई 1 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर कितना आ गया? 19 डिवाइडेड बाय 30। अभी सबसे बड़ा क्या है हमारा? 19 डिवाइडेड बाय 30। उससे छोटा क्या आ गया हमारा? 14 डिवाइडेड बाय 13, देन 12 डिवाइडेड बाय 13, 14 डिवाइडेड बाय 30 एंड 12 डिवाइडेड बाय 30। ये हो गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 19 डिवाइडेड बाय 13 इज ग्रेटर दैन 7 डिवाइडेड बाय 15 एंड उससे छोटा क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 19 डिवाइडेड बाय 30 ग्रेटर देन 70 डिवाइडेड बाय 15, 70 बाय 15 ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये क्या है? आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये आपको होमवर्क है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, fraction as division. Okay, so now look at here, fraction as the division. Rekha has some sweets and she want to distribute them equally among the 2 younger brothers. रेखा के पास कुछ स्वीट्स है और उसने क्या किए? उसके जो यंगर्स ब्रदर्स है उनको क्या किए? चॉकलेट दिए। तो हमें यहाँ पे दिया है। सो नाउ लुक एट हियर, इफ देयर आर 8 स्वीट्स, अगर उसके पास कितने स्वीट्स है? 8 स्वीट्स है। सो ईच चिल्ड्रन गेट 4। कितने मिल गए? सबको 4 मिल गए। कैसे 4 मिल गए? हमने 8 को 2 के साथ डिवाइड किया है। कितना किया है? 2 किया है, क्योंकि कितने ब्रदर्स है? 2 यंगर ब्रदर्स है। तो हमने 8 को 2 के साथ डिवाइड किया है, तो कितना आ गया? 4 स्वीट्स आ गए। इफ देयर आर स्वीट्स 6 स्वीट्स, अगर उसके पास 6 स्वीट्स है, ईच चिल्ड्रन गेट 3, दोनों को 3 मिल गए। कैसे 3 मिल गए? 6 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। स्वीट 6 है और 2 भाई है, तो कितने मिल गए? ईच को 3 स्वीट्स मिल गए। एंड इफ देयर आर 4 स्वीट्स, अगर उसके पास 4 स्वीट, ईच गेट 2, तो सबको कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आता है? 2 स्वीट्स आता है। इफ देयर इज ओनली 1 स्वीट्स, अगर 1 स्वीट्स है तो कितने मिलेगी? 1 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाफ आएगा। स्वीट देन ईच गेट चिल्ड्रन हाफ, दोनों को क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा। विच इज़ द 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि 1 स्वीट है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसको हम क्या करेंगे? जो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो न्यूमरेटर में नंबर है वो लिखते हैं, और उसके पास डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या है? 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है। तो हमने क्या किया? 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? आधा आएगा। अब फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज डिवीजन सम, जो हमारा फ्रैक्शन है वो सम क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। मतलब 4 को हम 2 टाइम्स मिलाएंगे तो क्या मिलता है?
8 मिलेगा। 3 को 2 टाइम्स मिलाएंगे तो कितना मिलता है, 8 मिलता है। सॉरी, 3 को 2 टाइम्स मिलाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और डिवीजन सम कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, और डिवीजन भी क्या एक्सप्रेस होता है, फ्रैक्शन एक्सप्रेस होता है। मतलब 8 है, 8 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा वहाँ पे, 8 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे फ्रैक्शन आएगा। तो ये एडिशन और फ्रैक्शन का क्या होता है, सम और फ्रैक्शन का रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 डिवाइडेड बाय 5 है, उसको हम लिखते हैं 6 डिवाइडेड बाय 5 एज द डिवीजन सम एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन। ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये सम, ये फ्रैक्शन एक्सप्रेस करता है। 8 डिवाइडेड बाय 9, 8 डिवाइडेड बाय 9, पहले न्यूमरेटर लिखा फिर डिनोमिनेटर, एज द फ्रैक्शन एज डिवीजन सम, और ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है डिवीजन। नाउ लुक एट हियर एक्सरसाइज 8.8, राइट ईच ऑफ द डिवीजन सम। हमें क्या करना है, डिवीजन सम में करना है, तो हमें कुछ नहीं, ये इजी है। ठीक है, सो नाउ लुक एट हियर एक्सरसाइज 8.8, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए का 1 क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 12 है। 3 डिवाइडेड बाय 12 को कुछ भी नहीं करना है हमें, 3 के साथ 12 को डिवाइड सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। 2 का क्या आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 24 है। तो हमें सिर्फ ये रिलेशन ही दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये क्या आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 24। देन 3 का क्या आएगा, 19 डिवाइडेड बाय 5 है, तो क्या आएगा, 19 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया 3 का। देन 4 में क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, डिवीजन दिया है, उसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में करना है। पहले क्या दिया था, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवीजन मेथड में करना था। अभी डिवीजन है तो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 7 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 डिवाइडेड बाय 7। जो पहला नंबर होता है वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो दूसरा नंबर होता है वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 7। देन 2 नंबर में है 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब 2 पार्ट्स का हमें 1 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। देन 3 नंबर, 10 डिवाइडेड बाय 15। 10 को हमें 15 के साथ डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 15। 10 डिवाइडेड बाय 15, तो 10 को हम 15 के साथ डिवाइड करेंगे। देन 4th नंबर, 12 डिवाइड बाय 3। 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय 3। इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में था, हमने डिवीजन फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में था, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में करना था। सो ये हमारी एक्सरसाइज 8.8 है। नाउ लुक एट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन करना है, उस समय हम क्या करते हैं, ये हमने ऑलरेडी क्लास 3 में पढ़ा हुआ है। उस समय हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देते हैं और न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको ऐड कर देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, देखो 3 डिवाइडेड बाय 8 है, प्लस करना है 4 डिवाइडेड बाय 8 है, तो क्या करेंगे, द न्यूमरेटर एडेड, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 टाइम जो भी सिंगल नंबर है वो लिख देंगे। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम, देयरफॉर 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8। डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देंगे और हमारा जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको हम
ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी सेम, ऐड 3 डिवाइडेड बाय 11 एंड 5 डिवाइडेड बाय 11 है, तो हम क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे। डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिख देंगे, डिनोमिनेटर में दोनों का 11 है तो यहाँ पे 11 लिख दिया है, और यहाँ पे क्या किया है 3 + 5 किया है। 3 + 5 कितना होता है 11 डिवाइडेड बाय 11। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैन बी शो एज नंबर लाइन्स। देखो यहाँ पे एडिशन फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0, 1 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 5 तक लिखा है, ठीक है। फिर 1 डिवाइडेड बाय 5 को हमें 2 डिवाइडेड बाय 5 तक ऐड करना है, मतलब 1 को और 2 टाइम्स मिलाना है, तो 1 और 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। ये इतने भी करने की ज़रूरत नहीं है, सेम डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 है, 2 डिवाइडेड बाय 5 है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 5 है, तो डिनोमिनेटर 1 टाइम लिख देंगे 5, और न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको ऐड करेंगे। 1 + 2 कितना होता है 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/5। से हमारा हो गया एडिशन। Exercise 8.9 we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.